بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیئرز سے تجارت کا حکم۔ شیئرز کی خرید و فروخت پر جو گفتگو اب تک کی گئی ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ شیئرز خریدنے والے کا مقصد کمپنی کا حصہ دار بن کر سرمایہ کاری کرنا ہی ہو۔ اگر خریدار کا مقصد سرمایہ کاری نہ ہو بلکہ اس ارادے سے خریدے کہ اس کی قیمت بڑھے گی تو فروخت کر کے نفع کماؤں گا، اس طریقے سے شیئرز کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی دو نقطۂ نظر ہے۔ فقہ خصوصاً فقہ المعاملات میں مہارت رکھنے والے عالم اسلام کے معروف عالم شیخ محمد صدیق الزریر کی رائے یہ ہے کہ اس طریقہ کار کی بنیاد محض تخمین اور قیاس آرائیوں پر ہے جس کو اسپیکولیشن کہتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قیاس آرائیوں کی بنیاد پر خرید و فروخت کی اجازت دینا سٹہ بازی کا راستہ کھولنا ہے۔ ان کے ہاں شیئرز خریدنا صرف اس صورت میں جائز ہوگا جبکہ خریدار کمپنی کے نفع نقصان میں شریک ہو کر سرمایہ کاری کے لیے خرید رہا ہو۔ کمپنی کی کاروبار کی جتنی شکلیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو آپ سمجھا اسلامی زمانے سے لے کر فقہا کے زمانے تک، لیکن جب سے انگریز اور یوروپ کے ملکوں کا سرمایہ دارانہ نظام دنیا کے اندر رائج ہوا، سامراجیواد ہوا، اس کے بعد سے کاروبار کی شکلیں بدلی، خاص کر کے یہ شیئرز کی جو شکل شروع ہوئی، کمپنیوں کے ہر ایک کمپنی کے اندر کی شیئر ہوتے ہیں، جو بھاگے داری اطلاعی بھاگے کا ہم بات کرتے ہیں، کتاب پر خالی انگلی رکھو ایسے لگے کہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو شیئرز کی یہ جو شکلیں شروع ہوئی، اصل بات یہی ہوئی کہ یوروپ کے ملکوں نے جب دنیا کے اندر کاروبار شروع کیے تو ایک آدمی تو اتنا لمبا چوڑا روپیہ خرچ نہیں کر سکتا، تو سب نے مل کر مشترکہ طور پر ہندوستان میں جو کمپنی آئی تھی قبضہ کرنا، ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے یہی کیا تھا، اور اس طرح کی دوسری دنیا بھر کی کمپنیاں آئی، انہوں نے مل کر کاروبار کیا۔ فقہی نقطۂ نظر سے ہدایہ میں آپ شرکت مزاربت وغیرہ کو سن چکے ہیں، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے، لیکن شرکت میں اور مزاربت میں اور پھر مزاربت کی جو شکلیں ہیں الگ الگ، شرکت کی جو الگ الگ شکلیں ہیں، ان تمام کے اندر فقہائے کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اپنے زمانے میں اس کے سلسلے میں جواز کی گنجائش جو ہوتی تھی ہوتی، اور جو عدم جواز کی شکلیں تھیں ان کو بھی ذکر کیا، بدائے شامی عالمگیری سب کے اندر یہ جزیات موجود ہے اور اصل حدیث کی بھی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو ایک چیز نکلی تھی کمپنی کے عنوان سے، اور اس کے اندر ایک تو یہ تھا کہ جیسے ہمارے یہاں بھی شرکت کی قسمیں تھیں، شرکت مفاوضہ، شرکت انعام وغیرہ، اور اس کے اندر اس طرح خودہ تھا کاروباری تھا، لیکن یہ جو شکل نکالی اس میں ایک تو انہوں نے کمپنی کا نام دیا اور سارے افراد اس کے جاری کر دیا۔ مزاربت اور مشارکت دونوں الگ الگ چیز ہے، مشارکت کے اندر سب کام میں شریک ہے اور مزاربت کے اندر شریک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سلیپنگ پارٹنر اس کو بلایا جاتا ہے، سونے والا پارٹنر، وہ صرف پیسے لے کر چھوٹ جاتا ہے، باقی سب چھوٹ، جیسے ہم لوگ بھی کمپنی کے شیئر خریدے اگر تو خرید لیے، تو کہیں بھی کسی کو بیچو اسٹاک ایکسچینج میں یا کہیں بھی، کمپنی تو اس کو واپس لینے والی ہے نہیں، مارکیٹ میں اس کو بیچا جائے، یہ ایک شکل تھی۔ اور اس کے اندر پھر لمیٹڈ اور محدود کمپنیاں ہوئی، ان کی ذمہ داریاں بھی محدود، تو ایک تو شیئر اسلامی نقطۂ نظر سے آیا اس کی کوئی شکل ہے تو حضرت مولانا نے اس کو مثالوں سے سمجھایا۔ اس میں ایک شکل جو سب سے بنیادی موضوع جو بنا ہوا تھا وہ ایک کمپنی جب کاروبار کرتی ہے، کمپنی کا کسی کے ساتھ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کمپنی اس وقت شخص قانونی کی حیثیت اختیار کی ہے، اس کو ایک شخص سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ تو ایک مانوی چیز ہے، چند آدمیوں نے مل کر کاروبار شروع کیا ہے، کمپنی کا کوئی نام رکھا ہے۔ اب جب کمپنی کو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا تو کورٹ میں کمپنی جاتی ہے تو کسی شخص کے نام سے نہیں جاتی ہے، یہ شخص قانونی کہا جاتا ہے، یعنی عصر حاضر کے کاروبار میں کمپنی کے ہر فرد پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، کمپنی کو مجموعی طور پر شخص قانونی کہا، کیس سیدھا کمپنی پر ہوگا، تو مولانا نے اس کی مثالیں دی دیا، اوقاف کے ذریعے، بیت المال کے ذریعے، مسجد کا کیس ہوتا ہے، متولی جاتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ ہمارا وہ بھائی کورٹ میں کوئی دے کے پوچھے کہ بھائی آپ کو آنا پڑا، تو وہ جواب بھی یہی کہتا ہے کہ مسجد کا مسئلہ، قبرستان کا کوئی مسئلہ ہے، متولی جائے گا تو قبرستان کے سلسلے میں، کورٹ کا کیس اس پر نہیں ہوا، مسجد کا جو نام ہوگا اس نام کے اوپر کیس ہوگا، تو اب یہ کیس مسجد کے اوپر کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو زندہ ہے ہی نہیں، کہا کہ نام اس کا رکھا گیا، کیس کا جو تعلق ہوگا وہ تو زندہ انسانوں سے ہی ہوگا، لیکن سیدھا ان پر نہیں ہوگا، اب وہ متولی پنے سے نکل گیا، بات پوری ہو گئی۔ اور اسی بنیاد کے اوپر شیئرز کمپنیوں کے اندر ستیم کمپیوٹر کی کمپنی ہے ہندوستان کی، اور
पूरी दुनिया में चौथे नंबर की कंपनी थी, लेकिन उसने आज से 10-15 साल पहले घोटाला किया। जब कंपनी में खोद आती है तो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो या कंपनी की जो बॉडी होती है, ये लोग रिजाइन हो जाते हैं। ये कहते हैं कि भाई हम इसमें नहीं कर सकते, कंपनी खुद में डाली। ये बहाने होते हैं आजकल कसरे हाजिर, इस्लामी नुक्ते नजर से सब बहाने हैं। ये होता है कि अगर रेलवे में कोई एक्सीडेंट हुआ तो रेल मिनिस्टर इस्तीफा दे, इस्तीफा वो देगा तो किस पर केस करेगा, तो छूटा हो गया। तो एक्सीडेंट हुआ तो किसकी कमजोरी, तो ये इस्लामी नुक्ते नजर सही नहीं है। हज़रत मौलाना रहीम मियां साहब फरमाते हैं कि बीच दरिया में कश्ती है और मल्ला इस्तीफा दे दे तो क्या होगा, इस्तीफे थोड़े चल रहे। इस तरीके से कंपनियों की ये जो बदमाशी और शरारत है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाए, ये खुद भी कर रहे हैं, दूसरों को भी। इस्लामी नुक्ते नज़र से इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन अब जबकि हमारे यहाँ यानी शेयर्स कंपनी का कारोबार इसी तरह चलता है, तो आया इस्लामी नुक्ते नज़र से शेयर्स कंपनी के कारोबार की ये जो 4 शर्तें मौलाना ने जिक्र की, इनके वजूद की बुनियाद के ऊपर अगर व्यय हो रही है, शिरकत हो रही है, तो आया हम किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं? एक तो हिंदुस्तान का मसला है जो सेकुलर मुल्क है, और एक इस्लामी मुल्कों के अंदर जहाँ पूरा निज़ाम मुसलमानों के हाथ में है, और वहाँ पर भी लेकिन कानून वहाँ पर भी सेकुलर मुल्कों की दुनिया के कारोबार पर जब यूरोप ने कब्जा कर लिया तो हर चीज़ में उन्हीं का चलता है। ये 4 दिन पहले इंग्लैंड से एक मसला आया, कोर्ट ने तलाक दी, कोर्ट ने मसला पूछा है जो कुछ मियाँ बीवी का होगा। शोहर ने भी तलाक दी थी, ये बाद में बोले, पहले तो इतना ही कहा कोर्ट के जरिए। तो मैंने कहा कि कोर्ट के जरिए जो तलाक होती है उसके बाद हमारे पास सेमिनार हो चुका है मसद में 8 साल पहले, और उसके अंदर तय हो चुका है बाद में शोहर से तलाक भी दी। कभी ऐसा होता है कि शोहर तलाक नहीं देता तो कोर्ट से ही तलाक दी जाती है, और कोर्ट तलाक दे तो शरीय एतबार से कोर्ट की तलाक मोतबर है। तो एक तो सेक्युलर कोर्ट है और एक इस्लामी दारुल क़ज़ा है। दारुल क़ज़ा का मसला तो आसान है, लेकिन सेक्युलर अगर वो तलाक दे तो इनकी तलाक का एतबार किया जाए, इसलिए कि तलाक का इख्तियार शोहर ने शरीयत ने शोहर को दिया है, या इस्लामी शरीय मसाइल के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाई होकर निया वतन जैसे आपने तलाक दी, हम भी निया वतन आपकी तरफ से, लेकिन सारे उसूल और शराई शरीय मसाइल के दाखों की रोशनी। ये भी नहीं कि बहुत जल्दबाजी में तलाक दिलवाई जाए, ये भी परेशान को मसले हैं। तो बतलाना ये है कि शख्स कानूनी को शरई एतबार से तकमील मजीद काबिल एतबार बतलाने के लिए हज़रत मौलाना ने 4 मिसालें दी थी, वो आप सुन चुके हैं। अब ये कारोबार की शक्लें होती है तो कभी कभार सिर्फ किताब में पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन अमलन प्रैक्टिकल क्या हो रहा है और प्रैक्टिकल किस तरीके से चीज़ होती है ये नहीं समझते। तो मुफ्ती साहब के पास जब गुस्सा आता है तो वो शेयर्स कंपनी की इस्तिलाह को नहीं जानते, वो शेयर्स कंपनी के मसाइल की जुज़ियात को नहीं जानते, वो तो बात की चीज़ हुई, खुद हिदायत के मसाइल नहीं जानते। असल परेशानी तो उसकी है। शिरकत और मुजारबत के उसूल और ज़ाब्ते इसलिए कि सरसरी नज़र से पड़ जाते हैं, हिदायत होती नहीं। तो मतलब तक कुछ मदरसों के अंदर सालिस और राबे से लामिसाज का ताल्लुक है, किसी तरीके से उसको छूटे ही नहीं, उसको सामने बना दिया है। और ये इस तरह के जो मसाइल होते हैं, और उमूमी तौर पर जिल्द सालिस और जिल्द राबे के जो मसाइल है, असर हाजिर के बैनुल अक़वामी जो मसाइल है, उन सब का ताल्लुक इन्हीं से है। तो इबादत और मामलात के मसाइल है, तो मुस्लिम पर्सन अल्लाह से एक का ताल्लुक सानी का, और पहली का इबादत से ताल्लुक। लेकिन सालिस और राबे के अंदर जो मसाइल आते हैं वो बैनुल अक़वामी मसाइल, अफराद और जमातों के दरमियान, और फिर जिसका ताल्लुक इस्लामी दारुल क़ज़ा से है, इस्लामी हुकूमत से है, इस किस्म की चीज़ें हैं, और वो दारुल क़ज़ा है नहीं यहाँ। तो अब हुकूमतों को क्या इख्तियार मिलेगा, या वो अगर पर्सनल लॉ में तकलीफ करके तरमीम करके कुछ गड़बड़ करें तो एक मुसलमान आपस में क्या करे। खैर, इन्होंने भी अब जो कुछ बाकी रखा है वो सिर्फ हमारे वक्फ के मसाइल है, विरासत के मसाइल है, बख्शिश के मसाइल है, इस किस्म के ही रखे हैं, कारोबार में नहीं है। कारोबारी दुनिया के अंदर एक आदमी दूसरे के खिलाफ केस करे और कोर्ट में जाकर कहे कि मैं इस्लामिक लॉ से, तो ये इस्लामिक लॉ अंग्रेज ने कब से निकाल दिया। 1937 के अंदर जो एक्ट बना है मुस्लिम पर्सनल लॉ, इन्होंने जो बाकी रखा उसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए वो तो रही। अब चंद चीज़ें ही रही, निकाह तलाक वगैरह, इला वगैरह मसाइल। तो हज़रत मौलाना जो अमली शक्ल है उसके लिए इन्होंने ये बता दिया कि शख्स कानूनी का अमल चलता है। अब उसके बाद कारोबार जब चलता है तो कारोबार में असल परेशानी जो है, हम लोग शरई मसाइल जानते हैं, शरई मसाइल को समझते हैं। ये लोग शरई मसाइल नहीं पढ़ते हैं, उसूल कानून पढ़ते हैं, या जहाँ सामाजिक होता है सामाजिक मसाइल को पढ़ते हैं। जो इकोनॉमिक की लाइन के होते हैं, ये जो कॉलेज वगैरह जो होती है, बीकॉम एमकॉम,
MBA, ये इस तरह की जो शक्लें बनती है उसके अंदर ये उसूल और ज़ाब्ते बतलाए जाते हैं तिजारत के, तो इंटरनेशनल कानून पढ़ाए जाते हैं। अर्थतंत्र के अंदर इस तरह की सारी चीज़ें हैं, 11वीं 12वीं और कॉलेज की भी जो चौकड़ियाँ होती हैं उन सब में यही चीज़ होती है। अब अमली शक्ल के अंदर हम लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, इसलिए मसला बतला देते हैं, लेकिन इस मसले का ये हल अमली शक्ल में मुमकिन है या नहीं, ये असल जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी एक मिसाल दूँ, बरसों तक एक मुफ्ती साहब रहे हैं बरतानिया में, तो हिंदुस्तान में आ गए। वहाँ उनसे पूछा गया कि एक जगह मस्जिद बन रही, तो मस्जिद तामीर हो रही थी, इससे पहले जब इजाज़त की प्लानिंग होती है वहाँ, तो इजाज़त में ही हुकूमत ने ये कहा था कि चूँकि आपकी मस्जिद ऐसी जगह पर जो आम शाहरा है और वैसे भी वहाँ ज़्यादा अफराद की भीड़ भाड़ को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए पहले से ये कहा था कि जुमा के दिन मस्जिद हो। सबसे बड़ा मसला तो पार्किंग का होता है, रात गाड़ी लेकर आता है, हमारी तरफ होता है कि जहाँ है वहाँ रखिए। इस मुल्क में तो देखे ही फिरते रहते हैं पुलिस वाले, तकली कर लगा दी कि कोर्ट में जाओ और वहाँ से पैसे अदा करो, पैसों की सजा इंग्लैंड में, और लोग सीधे हैं। गुजरात में भी जब माधव सिंह सोलंकी के ज़माने में 1984-85 में बहुत फसादात हुई, फिर उसको कांग्रेस ने हटा कर उसकी जगह अमर सिंह चौधरी को बिठाया, तो उसने शिक्षात्मक वेरो सजा के तौर पर एक वेरा लगा, और उस वेरे से फायदा ये हुआ कि फसाद बंद हो गया। अहमदाबाद में ज़्यादा फसाद नहीं था, तो ये कहा कि इस मोहल्ले में जितना होगा हर मोहल्ले वाले से पता सूट भी लिए जाएंगे। तो ऐसे ऐसी चीज़ है, इसके अंदर देखा इंग्लैंड की पुलिस को धंधा नहीं रखती है, तो ऐसा धंधा है कि जेब से ही वसूल कर लेती है, और ये इंसान के लिए खैर इस्लाम में ये नहीं है, लेकिन मजबूरन कभी 25 रुपये लेते भी हैं, इनकी गैरहाजिरी पर हमने लिए हैं, लेकिन मदरसे में जमा नहीं किए हैं, कि वो तलबा ही के ऊपर सर्व कर दिया है, चाहे उस पर न हुआ हो जिससे लिया हो, वो देर से आया तो उससे उसको नहीं भी मिला, लेकिन क्या ये जायज़ तो नहीं था, लेकिन मजबूरी है कि इससे भी कभी सर में हम पढ़ते थे वहाँ खाना बनी, तो उसमें भी आया खाना बनी होता था, तो सर में भी ये थोड़ी शक्ल अपनाई गई। तो उसके ऊपर रेमन भाई ममाया थे, समाज के बड़े जिम्मेदार थे, उनके साथ मेरे 3 पड़े हुए हैं हमारे सर में, मौलाना अब्दुल और मौलाना और भी उसने राम उनकी, तो उनकी बुनियाद पर तो उन्होंने ये कहा कि ये तो हमसे मंगवाते हैं गाइड से। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ज़्यादा मत लो फिर, बच्चा तो घर ये कहे खाना बंद हो गया है इसलिए पैसे भेजो, तो उसकी सज़ा तो माँ बाप को ही मिली, इसके काका को कोई मिले ही नहीं, तो उस बुनियाद पर भी तो में लेकिन चल रहा था, तो मौलाना अरशद साहब रहमतुल्लाह बहुत अच्छी तरह चलाते थे, बाद में भी चला है, क्या है मालूम नहीं है। तो ये चीज़ें इस्लाम में मालियात का तो मसला फिर नाजुक है, मालियात वसूल करने की। तो अब ये शेयर्स का कारोबार दुनिया भर में आम हो चुका है। एक तो वजह यह है कि मसला आसान है, एक आदमी 100 करोड़ 200 करोड़ का प्लान होता है तिजारत का, तो कंपनी लगा दे, मशीनरियाँ ही करोड़ों की आती है, तो अब इस किस्म की चीज़ों के लिए एक आदमी अकेला कारोबार नहीं कर सकता, तो ये चंद आदमियों को अपने साथ शरीक कर, चीज़ अच्छी है इसीलिए तो इस्लाम में इजाज़त दी है, लेकिन ये कानूनी एंच पैंच की शक्ल के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या गाइड सौदे या फ्यूचर सेल और इस किस्म के मामले के जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सट्टाबाजी हो रही है, तो ये चीज़ें जायज़ नहीं है, क्योंकि शेयर्स की बुनियाद पर इस तरह की कई चीज़ें हो चुकी है दुनिया भर में। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उम्दातुल फतावा में एक जूज़ है आपका पूरा अल-क़िससुस्सनी क़िससी कंपनी का तो नाम भी ऐसा होता था या नाम कुछ और है, लेकिन ये इसी अंदाज का नाम है, उसके अंदर हजरत ने इजाज़त दी है, गुंजाइशें दी है, लेकिन वो अंग्रेज़ी दौर है, अंग्रेज़ किसी भी चीज़ में कुछ करे, लेकिन अमूमी चीज़ों के अंदर वो ऐसा नहीं करे। अब तो वहाँ भी शुरू हो गया रिसर्च वगैरह, लेकिन ये है कि फिर भी ये चीज़ें इस तरह नहीं होती है। कारोबारी दुनिया में इन्होंने कुछ अखलाक और आदत और उसूल मंजूर रखे हैं, चीटिंग नहीं करते हैं। एक गैर मुस्लिम ने, यूरोप के गोरे ने मुसलमान के पैसे को इस तरह की कब्जे की है, तो वो मुसलमान अब कहाँ जाए, किसी ने बताया कि फलाना पादरी है, उससे इसके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके पास गए और उसको जाकर कहा कि ऐसा हुआ है, फलाने ने मेरे पैसे नहीं दिए, उसने पादरी ने उसको बुलाया, बुलाकर कहा कि मैंने सुना है कि तो मुसलमान हो गए, तो बिल्कुल नहीं, तो नहीं, फलाने मुसलमान से पैसे लिए और दे नहीं रहा है, कारोबार में उसके साथ जुट गया, कहाँ ऐसा हुआ है, तो ये धंधे मुसलमानों के तुम्हारे नहीं है, वल्लाहु आलम, ये किसी मंसर ने बनाया है किस्सा या हकीकत में हुआ है, लेकिन हमने वहाँ सुना है बार बार कसरत से। तो ये चीज़ें कसरत से अब हिंदुस्तान में हजम नहीं हो रही। हिंदुस्तान में हर्षद मेहता करके था, लंबा दौरा उसका, उस जमाने में हम लोग
नहीं बनाने आए उन्हीं दौर के अंदर हर्षद मेहता कितनी चाय की कितनी वाले सब ऐसे धंधे करते तो वो लेके जाता था कंपनियों के अंदर और फिर उसके बाद उससे वाकिफ हुआ और फिर उसके बाद उसने भी पैसे लगाए और इतना बड़ा घपला किया कि आज तक इकोनॉमिक की दुनिया के अंदर मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज में ये धंधे किए थे उसने और दुनिया हिंदुस्तान की राजधानी चाहे दिल्ली हो सियासी कैपिटल है लेकिन आर्थिक कैपिटल तो बम्बई ही है पूरे कारोबार का तो वही स्टॉक एक्सचेंज इसीलिए वहीं पर है तो जैसे गुजरात में चाहे कैपिटल अहमदाबाद हो लेकिन इकोनॉमिक जो कारोबार है वो तो सूरत शहर में ही हो रहे हैं इसका मतलब नहीं कि अहमदाबाद सो गया है ज़्यादातर जो कारोबार होते हैं इंटरनेशनल वो यहाँ होते हैं ये फीसद के एतबार से तो शेयर्स अब उमूमी तौर पर कंपनियों ने ये कर लिया है कि कोई भी दो चार आदमी खड़े हो गए और कोई कंपनी कायम करनी है तिजारत करनी है तो कंपनी कायम कर देती है अब वो रकम बतलाते हैं कि इतनी रकम तो हम अदा करेंगे और इतनी रकम लोगों के पास से लेंगे और फिर इनका नफ़ा तकसीम करेंगे नफ़ा की फीसद वगैरह शुरू में आप सब सुन चुके हैं न सुना हो तो तालिब इल्मों को मैंने पूछा कि पढ़ के आए हो किताब तो कहा हमने पढ़ाया नहीं हमने तो सुना है तो पढ़े ही नहीं है ये तरीका बिल्कुल गलत है कि तालिब इल्म आराम से बेहतर उस्ताद बन के और उस्ताद ही रोज ये लेक्चर होते हैं कॉलेज की दुनिया में लेकिन ये पहले तैयारी करने के बाद होते हैं 1500 में तो कोई डिग्री लेनी नहीं है इसलिए न पढ़ा तो भी क्या आगे जाकर मुलाजमत के लिए कोई उठने की सच्चाई है नहीं इतना महंगी हो ये नहीं है इसलिए ये भी लगी हजरत मौलाना मनाजिर हसन गिलानी फरमाते हैं कि दर्स में भी सब ये पहले देवबंद में ये तरीका नहीं था इस तरह डरते वाला बल्कि वहाँ किताबों के एतबार से अलग अलग तो हर आदमी अपनी सलाहियत और अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है और अब तो एक ने हिदायत होना वो मुकम्मल पढ़ी और एक ने कुछ भी नहीं पढ़ा सबको एक लाइन में ये भी अरबी लोग वो भी अरबी लोग इस तरीके से ये भी इसका और वो भी तो शेयर्स कंपनी के कारोबार में इस तरीके से होता था कि कुछ लोगों से रुपये लिए जाते थे अवाम उन्नास से उनको भी शरीक किया जाता है ये अच्छी चीज़ है तो उनको कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर कारोबार खुद नहीं कर सकते बड़ी उम्र के आदमी है मुलाजिम पेशा लोग हैं तो वो इस तरीके से कारोबार में पैसे लगाते हैं या किसी के पास है ही पैसे ज़्यादा तो कारोबार में उसको लगाना है तो कारोबार कर नहीं सकते तो ऐसी कंपनियों से वो शेयर्स खरीदते अब ये शेयर्स खरीदने का मतलब ये होता है कि कंपनी में कितने फीसद की शिरकत मौलाना ने उसको यूरोप और अंग्रेजी जो कुछ किताबें हैं इस लाइन की उस लाइन से यही बताया यानी कुछ उलमा ने कहा कि शेयर्स जो आप खरीदते हैं तो कंपनी में माल इसकी नुमाइंदगी नहीं हो रही आपकी शिरकत वाली 100%, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ तो मिन वजिन हो रही है ये अलग बात है कि दो आदमी कारोबार करें शिरकत का और उसमें दोनों शरीक आप जानते हैं कपास की कारोबार लेकर बैठे अब कोई कपास लेने के लिए आया या लेने के लिए आया तो या तो तकसीम किया होता है कि तुम भी दे देना ये भी दे दे कभी ये होता है कि गफले किए उसने या है कि उसने कारोबार में सही भाव नहीं बदलाया खोट हो रही है तो शरीक भी उसको कहते हैं कि सारे काम नहीं धंधा नहीं कहा हमने वो फोन करने में बुलाए हुए इस तरीके से भी चलता है लेकिन शेयर्स में ये कुछ नहीं है आपने कंपनी के शेयर खरीदे तो कंपनी जब पहले शुरू होती है तब तो आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं लेकिन जब कंपनी ने अपने शेयर मार्केट में बेच अब उमूमी तौर पर कंपनी से आप शेयर नहीं खरीदते रीसेल होता है किसी ने ले लिए अब आप उसके पास से खरीदते हैं या ब्रोकर जो होते हैं मार्केट के अंदर जो लोग होते हैं हर शहर में होते हैं देहातों में भी होते हैं कि शेयर लोगों के खरीदने बेचने के लिए वो दलाली का काम करते हैं सिमसार बनते हैं तो जायज़ है लेकिन कौन सी चीज़ों के खरीदे जाएँ कौन सी कंपनियों के ये जो उसूल और ज़ाब्ते को मौलाना बतलाए इसके अलावा भी ये जब किताब लिखी थी 20-25 साल हो गए आए मौलाना की किताब को और फिर उसके बाद बहुत सारे अहवाल भी पेश आए बैंकिंग के निज़ाम के शेयर्स की मार्केट के और शेयर मार्केट के अंदर हर्षद मेहता जैसे लोग भी आते गए इसलिए उसकी बुनियाद पर शेयर मार्केट अफराद तकलीफ का शिकार हुई उसके अलावा भी देखते हैं कि अचानक हुकूमत बदलती है इलेक्शन होते हैं और कारोबारी दुनिया में किसी कारोबारी को रात को हुकूमत बनी और सुबह में शेयर्स के भाव डाउन हो गए तो कौन सी नफा की कौन सी मिकदार है जिसमें खोट आई तो रात को सोए थे सुबह में लेकिन शेयर मार्केट ऐसा करती है सियासी कोई मसला पेश आ गया मुल्क में हिंदुस्तान में जो नोट छपता है इसका कागज़ इंग्लैंड की कोई कंपनी दे दी तो बंद हो गया कि इन्होंने इनके साथ कारोबार शुरू किया मनमोहन सिंह के ज़माने में ऐसा हुआ कि बम्बई से कुछ रुपये वहाँ की बैंक ऑफ बड़ौदा ने या तो भी हिंदुस्तानी बैंक होगी यानी सरकारी बैंक उसने रकम भेजी इत्तेफाक से नेपाल की बॉर्डर पर कुछ लोग पकड़े गए उनके पास से बनावटी नोटें खरीदी
तो पहले तो समझे कि पाकिस्तान की है, वो करते रहे ऐसा। लेकिन जब 2-4 केस आए और हर जगह पर ये आया कि ये बैंकिंग से आया है रुपया, बाहर से नहीं आया है, यानी बैंक ही को अंदर से कोई रुपया लेकर गया, उसने कहा मैं बैंक से लाया, बैंक ने कहा कि ये मुंबई की बड़ी बैंक से लिया। अब ये इस किस्म के वाक़यात हुए तो ये लोग घबराए कि ये तो जा रहा है रेला कहाँ पर, सरकार के पास। तो कोई हमारे अंदर ऐसा है जो नोटों को बनावटी गड़बड़ कर रहा है। उन नोटों को जांचने के लिए जब मशीन लाई गई, तो यहाँ हिंदुस्तान में मशीनें, ये सारी मशीनें वो है कि झूठा को ऐतबार, सच्चा भी बोले ना कोई, झूठा भी बोले, मशीन चलाने वाले भी तो वही है। तो गड़बड़ हुई। पाकिस्तान का नाम तो लिया है, लेकिन अमेरिका से इसके स्पेशलिस्ट को बुलाया है। उन्होंने ये कहा कि ये मशीनरी पाकिस्तान के पास अब तक नहीं आई, ये जो नोट छपी है ये छापने का मशीन पाकिस्तान के पास नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका के पास, आगाही के पास। अब उसकी तहकीक की गई कि नोट तो इंग्लैंड वाले छापते हैं, कागज़ तो वहाँ से आता है, इंग्लैंड की कंपनी से हम कागज़ खरीदते हैं, चाहे वो भी पूना वगैरह में छपे, लेकिन कुछ चीज़ें तो मोनोपोली होती है जो वहाँ की कंपनी। तो अब तहकीक की गई तो रेला गया इंग्लैंड। हिंदुस्तान में तो इन सबको छुपाया गया, लेकिन यूरोप के मुल्कों को पता चले तो कंपनियाँ एक दूसरे की मुखालिफ होती हैं, मौलवी जी के तो खिलाफ होता है सारे रात को उगलता है। तो इस तरीके से वहाँ भी कंपनियों में ये हुआ। तो हिंदुस्तान में तो कोई पता नहीं चला, उस कंपनी के इंटरनेशनल जो शेयर थे वो गिर गए। देखिए कंपनी ने घपला किया था तो कहीं ना कहीं नाम आएगा, तो लोग उन पर एतमाद नहीं करेंगे, तो कारोबार बंद हो जाएगा। तो अभी तो वही मगज को बाद में जाने न दो ना, अभी मगज गया नहीं, इससे पहले यहाँ परवाना जल गया। हिंदुस्तान को पता नहीं चल पाया और इसको छुपाया भी गया। इंटरनेशनल होते हैं नहीं, पाकिस्तान ने जब पकड़ा है तो ये इसराइली भी था, बैंक चला रहा था, लेकिन इसका कर गया, लेकिन पाकिस्तान को भी दबाना पड़ता है और कहीं उसकी रद्दी हुई है तो ये दबाते हैं, गुनाह करवाते हैं। अमेरिका इतना बेवकूफ़ नहीं होता, आपको स्कैंडल करवाता है। मोहम्मद बिन सलमान के पास काबूली को मरवाया, अब जिंदगी भर मोहम्मद बिन सलमान ताबे ही रहेगा अमेरिका के, बिल्कुल से। मोदी साहब भी चुप, ये भी यहाँ इत्मीनान से नहीं है, इन्होंने भी एक लड़की की जासूसी की थी, वो लड़की अमेरिका में है, उन्होंने उसको वहीं रखा है। जियो पॉलिटिकल वाला लिखता है कि किसी दिन मोदी अमेरिका के खिलाफ जाए तो पहली नौकरी कर, ये खुदा ही है। तो मौलाना अली मियां सब लिखते थे कि गुनाह करो लेकिन हमारी निगरानी में करो हमें पूछ कर करो, करने की इजाज़त है। अमेरिका ये कह रहा है। तो बतलाना ये है कि अब ये शेयर्स कंपनियों में ये जो उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि आगे मसला दूसरा है शेयर्स खरीदने का और खरीद कर फौरन बेचने का। एक तो ये कि कुछ लोग है कि शेयर खरीद लिए और अपने घर में रहे, हर साल डिविडेंड उनको जो मिलता है नफा 500, 700, 800, 1000, 2000, तो इससे तो चलता नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसी तरह रखते हैं कि जब बेचेंगे तो कीमत भी आएगी और अभी बेचना नहीं है। घराए हुए जो लोग होते हैं या जो मुस्तकबिल में अपनी औलाद के लिए तो सोचे हुए होते हैं, तो इनकी रकम को महफूज रखने के लिए वो शेयर अपने पास महफूज रखते हैं, इस तरह होता है। तो अब कारोबारी दुनिया में जितनी भी कंपनियां खुलती है, कारोबार भी करती है, लेकिन हमें शेयर्स बेचती है। तो आया ये शेयर्स खरीदना जायज़, तो शेयर्स की पहली हैसियत मुतय्यन कर दी गई कि आप उसमें हिस्से में शरीक हैं। 100% तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ आपकी शिरकत मानी गई, इतनी मानी गई है कि जिससे आप उनके शरीक शकी नुक़्ते नज़र से हो जाए। मौलाना ने उसको जिक्र किया है और इस दुनिया के ऊपर उसके दवाज़ की गुंजाइश। तो फी नफ्सी ही शेयर्स की खरीदो फरोख्त का कोई मसला पूछे तो शेयर्स की खरीदो फरोख्त तो कारोबार हुआ, शिरकत हुई या मुजारबत हुई, और शिरकत मुफावजा से भी उसको शिरकत इनाम से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ताबीर किया। मुजारबा में तो होता है कि आप पैसे देकर अलग हो जाए। आपका तो यही मामला है शेयर्स के साथ। लेकिन जिन लोगों ने शेयर्स कंपनी बनाई है, जो इसकी बॉडी है, जो इसको चला रहे हैं, कारोबार को पूरी दुनिया में जो चला रहे हैं, ये कारोबार करने वाले खुद एक तो डायरेक्टर है और दूसरा ये खुद भी शेयर्स खरीदते हैं। यानी इनका भी जो उन्मान होता है, इन्होंने पैसे दिए हैं तो पैसे दिए, इसकी गारंटी क्या, वो भी अपने शेयर्स खरीद कर, पैसे 1 करोड़ दिए हैं तो 1 करोड़ के इनके शेयर, ताकि कल अगर कोई भी गड़बड़ हो, ये कंपनी दूसरी कंपनी में मार्जिन हो जाए, इसका मर्जर हो जाए, तो फिर उस मौके के ऊपर क्या होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2-3 बैंकें मर्जर हो गई, तो उन बैंकों ने जो रुपया लगाया था, इनके शेयर होंगे, ये सारी चीज़ें इसके साथ हो रहा है। खैर बैंक का तो मसला अलग है, हुकूमती का मसला है, लेकिन ये जो मसला है कारोबारी दुनिया, तो इसलिए जो कंपनी कायम करता है वो भी उसके अंदर शेयर्स खरीदता है। यानी ये नुमाइंदगी हो कि इतने रुपये मैंने कारोबार में लगाए हैं, वरना अगर उसको न मिले तो कल अगर झगड़ा या इसका इंतकाल हो गया, उसके बेटे का मसला है तो
हमारे अब्बा का तो कोई शेयर ही नहीं है, हालांकि वो डायरेक्टर था। तो इस बुनियाद के ऊपर शेयर्स का सिस्टम है अच्छा कि आपने कोई चीज़ करी, कुरान ने खुद फरमा दिया है वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, दोनों कोई भी मामला करे तो लिखो, ये तो लिखना है। लेकिन शेयर्स खरीदने के बाद ये देखा जाए कि जिस कंपनी का मैंने शेयर खरीदा वो कंपनी मार्केट में कारोबार क्या करती है, सर उसका मसला है। तो एक तो उसूली तौर पर, शरकी तौर पर कंपनी कायम होने के बाद सबसे बड़ा मसला आता है हलाल और हराम कारोबार। फिर एक मसला आता है बैंकिंग का, और उसमें सूद, चाहे तो शेयर्स कंपनी किसी से सूद कर ले, चाहे शेयर्स कंपनी किसी को सूद पर रुपया दे, दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, मुझे जो बतलाना था वो ये कि आप कंपनी में आपने तो शेयर्स खरीद कर आप सिर्फ मुजारिब की हैसियत इख्तियार की, लेकिन ये जो बॉडी होती है ये मुजारिब भी होती है और साथ साथ मुशारिक भी होती है। वो शिरकत भी उनकी है और उसके साथ मुजारबत भी, यानी वो खुद कारोबार करते हैं, वो रब्बुल माल हम है और वो हमारे मुजारिब बने हुए हैं। मुजारिब भी वो बने हैं और उसके साथ साथ मुशारिक भी बने हैं, इसलिए इनका भी रुपया लगा है। एक तो मुजारिब होता है कि सिर्फ उसने काम करना है, और एक ये है कि काम भी करना है और उसके साथ अपने पैसे भी लगाए। तो आया मुजारबत में ये जायज़ है या नहीं, ये मसला है। हज़रत थानी और दूसरे को कहा कि नाम ने कहा कि गुंजाइश हो, जैसे शिरकत करने वालों के नफ़ा के अंदर फीसद मुतय्यन ज़रूरी नहीं है कि सबके बराबर हो, 1 लाख वाले के 1 लाख के हिसाब से, 2 लाख वाले के 2 लाख के हिसाब से हो, ये हो भी सकता है आपस के मामला में। और अगर वो ये कहे कि चाहे मैंने 2 लाख 1 लाख दिए हैं, लेकिन मैं वो इस्लाम का स्पेशलिस्ट है, आपने जो कारोबार शुरू किया उसका माहिर है, तो आप जानते हैं कि ये बैठा रहेगा तब भी काम नफ़ा हमको ज़्यादा मिलेगा, और हम सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे तब भी कोई हमको भी होंगे उस लाइन से। इसलिए हमारे मुकाबले में ये कंपनी को आगे बढ़ाना है। इसीलिए देखते हैं कि कभी कभार कंपनी का डायरेक्टर खुद बाहर से लाया जाता है। ये हुआ था, इतनी बड़ी टाटा कंपनी हिंदुस्तान में इतनी बड़ी, लेकिन रतन टाटा ने इनके किसी रिश्तेदार को नहीं बिठाया था, उन्हीं के था वो पारसी ही था और उसी को बिठाया था। रमेश मिस्त्री करके था, मिस्त्री से यही समझने का कि कोई कारवा हो, वो वही था। मिस्त्री अटक हो गई थी उसकी, लेकिन फिर इनके आपस में झगड़े हुए और फिर उसके बाद उसको अलग किया गया। तो कभी ये भी होता है कि बाहर से वो आता है और तनख्वाह पर रखा जाता है। कभी वो कहे कि नहीं मैं शेयर खरीदूँ और मुझे शेयर दिए जाएँ, और फिर उसके बाद कारोबार में मुझे रखा हो, या मेरी तनख्वाह के बदले में मुझे शेयर दिए, इस तरह जो कुछ भी होता है। तो अब दुनिया में जहाँ कहीं भी आपको कारोबार में शिरकत करनी होती है, बड़ी चीज़ों में या इत्मीनान बख्श, एक तो आपस में हमारे यहाँ होती है, 2 आदमी 3 आदमी मिलकर शिरकत करते रहते हैं, कारोबार करते रहते हैं, वो तो छोटे पैमाने पर है। एक आदमी मुलाजमत भी करता है और साथ में इसको रुपया है इसके पास, तो कहाँ लगाना, तो सबसे आसान शक्ल समझता है कि शेयर मार्केट में लगाओ। अगर शेयर मार्केट उसूल और ज़ाब्तों से चले तो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ आ ही जाती है। कोई ना कोई आप सुन ही चुके हैं कम्युनिज्म का, मजदूरों को उनका हक दिया जाए, इस बहाने से खड़े हुए फिर आका वही बन गए, मजदूर ही आका बन गए और मजदूर तो वहीं के वहीं रहे। तो इस तरीके से होता है। अगर सही उसूल और ज़ाब्तों की रोशनी में चले तो कंपनी भी सही तरीके से चलेगी और उसका जो नफ़ा हो। अब आप देखिए कि सेविंग अकाउंट, हम लोग अपनी रकम जमा करवाते हैं सेविंग अकाउंट, वो जमा रहती है, लेकिन वो रकम जमा नहीं रहती है। आप जमा करवाने गए और बाजू में दूसरा खड़ा है और वो लेने आया है, तो आप बंडल चीज़ें नहीं गए, आपका तो जमा हो गया, लेकिन ये आपके पैसे फौरन उसको, तो ये अमानत नहीं है। ये इसके अंदर करते हैं क्या, ध्यान का मतलब ये है कि वो आपकी रकम को, ये अलग बात है कि समझ मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होते तो उसके पास होता है, इसलिए ये नोट में वो नोट का कोई फर्क नहीं। लेकिन बात यह है कि आपकी रकम जब लेने जाओ फौरन मिल जाए ये ज़रूरी नहीं। आम मतन तो सेविंग अकाउंट में यही होता है कि रकम रखने आते भी हैं लोग और लेने के लिए भी जाते हैं, तो रकम उनके पास मिलती है। लेकिन अगर मसलन कभी बड़ी रकम या ऐसे वक्त गए कि उनकी रकम बैंक के पास खत्म हो गई, छोटी बैंक है, ब्रांच है, और रकम उसके पास कम होती है, अब आप गए तो कहीं की क्या करा। करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, बैंकिंग का भी सुनी में आगे भी आ रहा है। करंट अकाउंट में इस तरह नहीं होता है, वहाँ जिस वक्त आप गए फौरन आपकी रकम मिल जाती है। या जो काम करना है करंट अकाउंट का, जो आपको सामने वाले को बतलाना है कि मेरे पास मेरा कारोबार इतना चलता है, करंट अकाउंट में असल रकम बड़ी जमा होना ज़रूरी नहीं है, आई गई इतनी गई ना हो, आई भी हो, तो करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर, मसले वहाँ आएंगे।
कंपनी में भी अब ये होता है कि उमूमी तौर पर लोगों ने अपनी रकमें शेयर मार्केट में रख दी। तो अभी जिस 8-10 साल से कंपनियों में गड़बड़ें आई तो लोगों की रकम कम हो गई, वरना इंश्योरेंस में, सूदी कारोबार में और शेयर मार्केट में लोगों की उमूमी रकम जो लगी हुई है वो इसमें, फिर इंश्योरेंस की मुख्तलिफ किस्में हैं और इसी तरह सूदी कारोबार की भी मुख्तलिफ शक्लें हैं और इसी तरह शेयर मार्केट। अब मैं आपको ये बतलाना चाहता था कि कुछ कारोबार तो वो होते हैं जो शरीयत के मुताबिक होते हैं लेकिन आपस में गुफ्तगू नहीं होती, यानी बाकायदा मुआहदा नहीं होता खरीदो फरोख्त का। आपने जो सेविंग अकाउंट में रकम जमा करवाई, आपने हजारों लाखों जितने भी बैंक के होल्डर होंगे वो सब जमा करवाते हैं और एक दिन 2 दिन के बाद लिया या 1 साल 2 साल के बाद लिया या 10 साल तक रकम पड़ी गई और नहीं लिया आपने। अब वो बैंक क्या करती है, बैंक ये रकम खुद कारोबार नहीं कर सकती सीधी, ये बैंकों की ये जो हमारे यहाँ उसूल है 1932-33 के अंदर जनूबी हिंदुस्तान के अंदर कोई इस्लामी बैंक खोल रहे थे उस वक्त अंग्रेजी दौर के अंदर, तो उस वक्त कारोबारी एतबार से उन्होंने ये चीज़ रखी थी जो शेयर्स की होती है और मुशारका की। तो बैंक भी एक पार्टनर बनी, सरकार ने अंग्रेज़ों ने कहा कि बैंक पार्टनर नहीं कर सकती, कारोबार नहीं कर सकती, वो पार्टनरों को रुपये दे सकती है सूद पर, तो सब कुछ कर सकती है लेकिन सीधी वो कारोबार नहीं करेगी। अब कारोबार नहीं करेगी लेकिन कर रही है, यानी सीधे नहीं कर रही है, ये सब बीच की गलियाँ निकाली, ये समझ लेने का कि कहीं कहीं कारोबार के अंदर कहीं कोई अधिक शक्ल निकाली हो वहाँ हनूद और यहूद, एक वजन पर जो 2 कौमें हैं बनिया और यहूद, ये दोनों अपने फायदे के लिए दुनिया के कारोबार को इस तरह चलाते हैं। इनका तो मुल्क में चलता है, उनका इंटरनेशनल चल रहा है, इसलिए वो इस तरीके से ही करते हैं। इसलिए अब सामने वाले मजबूर है, पूरी दुनिया का कानून ये बन गया है तो मुस्लिम मुल्क को भी करना होगा। तो यही ये अलग बात है कि इंफिरादी तौर पर एक शख्स को हराम का कारोबार नहीं करना है और इज्तिमाई तौर पर किसी मुल्क को नहीं करना है, दोनों में फ़र्क है। इंफिरादी तौर पर एक शख्स मजबूर हो जाएगा, इज्तिमाई तौर पर हुकूमत है, मुल्क है तो ये मजबूर नहीं होता। और फिर आजकल के हालात में पूरी दुनिया के अंदर जहाँ रेस लगी हुई हो कारोबारी दुनिया की, तो एक नहीं तो दूसरा आएगा। इस्लामी उसूल और यानी कुछ ममालिक ये कहते हैं कि क्या करें इंटरनेशनल कानून नहीं से, ऐसा नहीं। आज से कई साल पहले सूरत में ये जो सईदना है उसका बाप था, बड़ी उम्र में, लंबी उम्र में मरा है, अभी 2-4 साल पहले मरा है, बुरहानुद्दीन। तो उसने सूरत के ताजिरों को ये कहा कि सूद लेना देना हराम, सूदी पैसे अगर बैंकों में रखे हैं तो सब ले लो। तो सूरत के अंदर सुरौफ लोग होते हैं, सीधे उन्वान से बैंकें तो कम है लेकिन छोटी सी दुकान लेके बैठे हैं, आपके उम्र के व्यापारी से, लेकिन इजाजत नहीं है, ये बहुत बड़ा साहूकार होता है, सुरौफ होता है, जो लोगों को कर्ज के ऊपर रकम सूद के ऊपर देते हैं। तो अब ये सामने से हिंदुओं ने ये कहा, बहुत अच्छा, हिंदू तो अच्छा ही है, आप कारोबार करो और आपको सूद न दिया देना पड़े, तो इन्होंने खुद कबूल किया। देना पड़ता तो बात दूसरी थी, लेकिन यहाँ तो लेना नहीं है इनको मुसलमानों को। तो उसने ये किया तो सारे बुरहानी लोगों ने सब ने इस पर अमल किया। हमारी यहाँ अलग बात है कि नहीं सुना जाता है, लेकिन अभी अमीर शरीयत के नाम पर भी झगड़े, तो फिर अमीर क्या होगा? अमीरुल हिंद इसके ऊपर भी चली थी पहले, तो वो जिसको अमीर बनाया जा रहा है वो खुद उनके केस कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में जमीयत के दोनों धर्मों के केस, और फिर अमीरुल हिंद भी बने जा रहे हैं। तो आप तो दूसरों की अमारत में जी रहे हैं, ये मसले हैं। इसलिए सुन्नियों के मसले ना है, इसलिए मुतफिक है, इसलिए तो गालिबार हैं दुनिया में। तो अब ये है कि ये जो कंपनी है, बैंक में ये जो अकाउंट है, आपको साल पूरा होने पर हल्का सा सूद के नाम से दिया जाएगा, इंटरेस्ट के उन्वान से आपको रकम देगी। अगर यही बैंक आपके साथ मामला करे कि हम आपके रुपये लेते हैं, और ये बैंक भी तो कारोबार में ही लगा दी और कारोबार में लगाएगी, ये अलग बात है कि सेक्युलर है इसलिए वो सूदी कारोबार में उमूमन लगाते हैं, तो एक मुसलमान के लिए इसमें भी परेशानी आती है। इसलिए शेयर्स खरीदना और फरोख्त करना, खरीदना और बेचना, ये साफ शफाफ धंधा नहीं, इतना याद रखा है। कारोबार में मजबूरन कभी कोई कर लिया या आ गया, एक आदमी के पास आपने उसको रकम दी है, रकम दी मिल रही है, अब उसके शेयर्स हैं तो लाओ, तो शेयर मिले, अब मार्केट में जाकर आप बेच रहे हैं। हालांकि ये शेयर्स कौन से हैं, तो कारोबार किस तरह का कंपनी कर रहे हैं कुछ नहीं, लेकिन आपने लिए उसके पास, उसने दिए हैं, और फिर उसके बाद आप
उससे नफा उठा रहे हैं, यानी उस रकम को, उस शेयर्स को बेच रहे हैं और मार्केट वैल्यू से आपको मिल रहा है। ये मजबूरन कभी होता है वो अलग, बाकी आम अहवाल के एतबार से शेयर्स पर इत्मीनान नहीं है, खास करके हिंदुस्तान में इत्मीनान। किसी मुसलमान को कारोबार में रखो तो उस पर इत्मीनान नहीं कि हलाल हराम क्या कर रहा है, क्या कपड़े कर रहा है, तो इनके ऊपर 100% भरोसा। जो चमड़ी टूटे लेकिन दबड़ी न टूटे ऐसे निकालने वाले, ऐसी को उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर उसूल और ज़ाब्तों की रोशनी में शेयर्स की खरीदो फरोख्त हो रही है, शेयर्स कंपनी उसी अंदाज से हो रही है जो मौलाना ने जिक्र किया, और उसी अंदाज से वो कारोबार कर रही है, तो फिकी नुक्ते नज़र से गुंजाइश। इन 4 शर्तों को जिक्र किया जो इससे पहले आप सुन चुके हैं। अब मैंने जैसा आपको कहा कि सेविंग अकाउंट में आपने रकम रखी है, हम तो रकम रखवाते हैं सिर्फ अपनी रकम की हिफाजत के लिए, लेकिन वो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब इंटरेस्ट के बजाय आप कहो कि ये इंटरेस्ट नहीं है बल्कि साल भर हमारी रकम चली तो कारोबार नहीं हुआ है, बैंक ने मुशारका आपसे नहीं किया है, तो अमानत के तौर पर आपने डिपोजिट रखी थी और उन्होंने फिर उसको गड़बड़ कर दी। और आपको मालूम भी है गड़बड़ की कि आपको पहले से ही मालूम है कि बैंक में मैं रकम जमा करवाता हूँ तो मेरी रकम तो इधर उधर होगी, लेकिन जब मैं जाऊँगा तो मुझे अपनी रकम जितनी है वो वहाँ सूद मिल जाती है, तो आपको खुद यकीन है इस बात का। अब आप रकम रखवाते हैं लेकिन नीयत वो है, इसलिए कुछ उलमा किसी ज़माने में ये कहते थे कि बैंक में रकम भी मत रखो। हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ बैंक में रकम रखना लाजिमी नहीं है, समझ रहे हैं, आपके घर से 1 करोड़ रुपया मिला तो घबराने का नहीं, आप कारोबार कर रहे हैं और टैक्स अदा किया है तो 1 करोड़ 2 करोड़ मिले से कुछ नहीं, और अगर नहीं दिया है तो 2 लाख निकले तब भी लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपने किया है, ये हिंदुस्तान में है, लेकिन यूरोप के मुल्कों में ऐसा नहीं है, वहाँ इतने पाउंड और इतने डॉलर के बाद की रकम घर में नहीं रख सकते, रखी तो आप गुनेगार, यदि रखने पड़ी गुनेगार, हिसाब तो बाद में देने का कि कहाँ से ला, तो टैक्स तो बाद में, ये रखना ही गुनाह है। ये यहूदियों की पॉलिसी है कि आपके पास ये तो अभी यहाँ सादा है, इसने यही धंधा करना शुरू किया था नॉनवेज नहीं, लेकिन नहीं चल पाया हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में चल, लेकिन कुछ तो फिर उसके बाद हुआ ही है, लोगों ने बैंकों में खाते खुलवाए, कैश घरों में नहीं रखे, लेकिन वो भी ले लिए और कब क्या हो जाए, तो ये इंटरनेशनल इस तरह दिखा है। तो बैंक अब आपसे अगर मामला कर लेती है, ये रकम आपकी हम लेते हैं 2 लाख रुपये 1 लाख रुपया और उसको हम कारोबार में लगाएंगे और कितने महीने के बाद आपको देंगे, अब आप राजी हैं। कभी करंट अकाउंट में ये नहीं होता है, इसलिए वहाँ तो आप रकम रखवाओ, करंट खाता खुलवाया है तो आपको सामने से टैक्स देना पड़ेगा, चार्ज उसका देना पड़ेगा, इसलिए कि आप तो अभी रख के गए 2 लाख रुपये और आधे घंटे के बाद किसी से सौदा हुआ और आपने बैंक में कहा कि ये रकम वहाँ मुझे ट्रांसफर करनी है, तो मैं हूँ खाली उनके मुलाजिमीन ने आपकी चीज़ें लिखी, कंप्यूटर चला, ये टैक्स, तो इसका वो क्या करेंगे आपके पास 7 रुपये, लेकिन अब रुपया है ही नहीं, तो करंट अकाउंट में रखते हैं तो अभी बैंक ले लेती है, तो ऊपर से सूद भी देती है, ये कहती है कि करंट अकाउंट में रखो लेकिन 1 दिन के लिए 1 हफ्ते के लिए डिपोजिट जो करते हैं तो अलग चीज़ है, करंट अकाउंट अलग है। तो करंट अकाउंट पर भी अब ये टैक्स नहीं लेते हैं तो इसको तो फायदा है, लेकिन फ़ायदा उनको भी है। 100 आदमियों ने करंट अकाउंट में रकम रखवाई है तो ये जरूरी थोड़ी है कि सबके सब अभी उठा लें, जितनी देर रही नहीं उतनी देर तो बैंक आगे चलाया, ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा करने देगी, मिला दूसरे अकाउंट वाले ने रखा होगा तो आपको मिल जाएगा, तो इतने में बैंक कारोबार कर लेते हैं, इस दुनिया के ऊपर इनको नफ़ा मिल जाता है। नफ़ा क्या मतलब, वही सूद मिलता है, इसलिए यहाँ भी कारोबार नहीं हो रहा। तो शेयर से अब ये एक किस्म का, यानी पूरी दुनिया में ये किया है इन्होंने, धंधे ऐसे किए हैं कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदने जाओ या कारोबार करने जाओ तो एक तो ये कि इंफरादी कारोबार किया, और एक ये है कि आपको बड़ा कारोबार करना है किसी कंपनी से, तो ये इसी सिस्टम में आना होगा, शेयर वाली सिस्टम में आए वगैरह आपके कारोबार चलते रहेंगे, या तो शेयर्स खरीदो या कंपनी के डायरेक्टर बनकर दूसरों से शेयर्स खरीदवाओ, दोनों में से कोई एक शक्ल उम्मीदी तौर पर। अब बड़े जो मुसलमान मालदार है वो यही करते हैं, कंपनी खोलते हैं और कंपनी के अंदर वही उसूल चलते हैं जो सेक्युलर मुल्कों में चलते हैं, इसलिए कई शक्लें इसमें ऐसी होती है जो गैर इस्लामिक भी होती है। खैर मौलाना ने तो इस्लामिक करने के बाद ये 4 शर्तें जिक्र की है, असला कारोबार हलाल हुई, सबसे बड़ा मसला आता है, इसीलिए जब किसी कंपनी के शेयर खरीदो तो कम से कम ये तो आप तहकीक करो, तो इसके लिए अब इस्लामिक हलाल विंडोज भी शुरू हो चुके हैं, इस्लामी कंपनियां हैं या कुछ मुसलमान ऐसे हजरात हैं जो इस लाइन के माहिर है, वो इन कंपनियों को पूछते हैं कि कौन कौन सा कारोबार आप कर रहे हैं और उन कंपनियों की विजिट के लिए भी जाते हैं, वल्लाह आलम जाते हैं या नहीं, लेकिन ये है कि अब सिक्का उसका लगता है,
یہ کاروبار حلال ہے. ایک تو کاروبار کی جو چیز ہے وہ حلال ہے، وہ الگ ہے. کہ دوائی کمپنی ہے تو دوائی حلال ہے، وہ حلال کا سکہ مفتی ادرا کر رہے ہیں. اور ایک یہ کہ یہ کمپنی جو کاروبار کر رہی ہے اپنے یہاں، یہ کاروبار اسلامی نظام سے ہو رہا ہے، تو اس کا بھی سکہ لگ رہا ہے. اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے اجازت دی. تو اب جب وہ کمپنی اپنی ایڈورٹائز کرتی ہے تو ایک مسلمان کو اس سے دلچسپی ہوگی. وہ جانتا ہے کہ اس کے شہر حلال کاروبار کے ذریعے آ رہے ہیں تو میرے لیے انٹرسٹ ہے. تو انٹرسٹ یعنی دلچسپی ہے. تو اب یہ اس دنیا کے اوپر وہ اندر جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے. تو اب مفتی صاحب لیکن نگرانی اس کی کرتے ہیں یا نہیں؟ ابھی میچور فنڈ کے متعلق آیا اور اس طرح کی 2-4 کمپنیوں کے متعلق آیا ہے. صاحب آئے ہیں بہت کے کاروباری اسی لائن کے ہیں کاروباری، تو آئے انہوں نے کاغذ بدلایا، ہم بھی نہیں جانتے ہو. تو ہمارے تو شریعہ اور ہمارے سیف اللہ صاحب سے رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ گزشتہ سال کی بات ہے، مصطفیٰ صاحب سے کروایا تو پتہ چلا کہ یہ کاروباری یہ جو علماء کی کمی کی ہے یہ علماء دیوبند ہے اور صحیح طریقے سے یہ حضرات کرتے ہیں. دیوبندی ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح ہونا ضروری ہے. دیوبندی میں کبھی فرق نہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اصول اور ضابطوں کی روشنی میں وہ کیا جائے. تو شہر سے خریدنے کی ایک کوئی پہلی چیز بتلائی. دوسری جو شرط مولانا نے بتلائی تھی قیمتیں اس لیے یا سے کم و بیش بیچنے کی، یہ ضروری ہے کہ کمپنی کے اساسی صرف نقد کی شکل میں نہ ہو. کمپنی شروع ہو رہی ہے، کمپنی میں آپ نے جو روپیہ لگایا تو کچھ روپیہ تو زمین خریدنے کے لیے ہوگا یا زمین کے کرائے کے لیے ہوگا، مشینری خریدنے کے لیے یا مشینری کرائے پر، مشینری بھی کرائے پر ملتی ہے اور پھر مالک بنایا جاتا ہے. اس طرح کی بھی شکلیں ہوتی ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے. حاصل اتنا ہے کہ جب کمپنی شروع ہوتی ہے تو کمپنی کے پاس کیش ہوتا ہے. مثلا آپ نے کمپنی میں 100 شیئر خریدے 10 روپئے کے، تو 1000 روپیہ آپ نے دیا اور 10 شیئر، ایک ہی شیئر ملے لیکن اس میں لکھا ہوا ہو کہ فلانے نمبر سے فلانے نمبر کا، تو ایک شیئر نہیں ہے، یہ 10 شیئر. تو آپ کو یہ 10 شیئر آپ نے خریدے. کمپنی میں ابھی کوئی کمپنی نے زمین بھی نہیں خریدی، ابھی تو عنوان لگایا کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا سب کچھ ہو گیا رجسٹر لیکن ابھی کمپنی نے کوئی چیز خریدی نہیں. اب جب کمپنی کے اندر 10 روپئے کے مقابلے میں 10 روپیہ ہی ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے اور کوئی چیز انہوں نے مشینری بھی نہیں خریدی. اب جب آپ 11 روپئے میں آپ کا شیئر بیچیں گے وہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ کمپنی کا تو روپیہ ابھی صحیح حال ہے، جامد نہیں ہوا ہے، اموال اور نقول کی شکل میں نہیں ہے، وہ چاہے مال منقولہ ہو گئے منقولہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ مبی کی شکل میں نہیں ہے، وہ کیش شکل میں ہے. تو روپیے کا روپیے سے، سونے کا سونے سے تبادلہ، اور کئی وسیلوں نہیں ہے اس کے اندر، اشیاء سکہ کے علاوہ کے لیے ہے، تمیز جاتی ان کے لیے نہیں. اس لیے یہ روپیہ بھی اس حکم میں ہو گیا. اس لیے مولانا نے یہ فرمایا. لیکن عام مدنی کمپنی شروع ہوتی ہے تب ہوتا ہے. ہم جو خریدتے ہیں شیئر میں کسی کمپنی کا شیئر چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے اور آپ وایا ہو کر کسی سے خرید رہے ہیں تو اس وقت یہ مسئلہ نہیں آتا، اس لیے کہ کمپنی میں سیاح بھی ہیں سب کچھ. کمپنی جب شروع ہو، مولانا نے اصولی طور پر یہ مسئلہ ذکر کر دیا لیکن عملی شکل میں اس کا وجود بہت کم ہے. تیسرے نمبر پر خود کے خلاف آواز اٹھائی جائے، مولانا نے اس کو دکھایا ہے خانی کے حوالے سے، لیکن یہ پوری غلط ایسی، اس لیے کہ آپ کاروبار میں جانتے ہیں کہ میرے بولنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا اور پھر بھی آپ بول رہے ہو. کارخانے میں مولانا نے خود لکھا ہے دوسرے کی آواز. تو حضرت خانوی نے جس کو فرمایا تھا کہ AGM میں آواز اٹھائی جائے اور اس کے اندر یہ ایک بات کہی گئی تھی دارالحرب کے. اب یہ دارالحرب نہیں رہا آزادی کے بعد، حضرت خانوی کے انتقال کے بعد، اس لیے امداد الفتاویٰ کا حوالہ اور کفایت المفتی کا حوالہ ہر جگہ نہیں چلے گا. کفایت اللہ صاحب نے کچھ فتوے وہ دیے ہیں جبکہ وہ خود بھی جمعیت کے سردار، جمعیت کے بڑے ذمہ دار. اس لیے ملک کی آزادی کے بعد اب یہ دارالحرب نہیں رہا. جنہوں نے جب تک انگریز کا دور تھا دارالحرب نہیں کہا تھا، اب وہ دارالحرب کہہ رہے ہیں. بریلوی لوگ اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام، احمد رضا خان صاحب کا رسالہ ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے. اور احمدآباد شریف میں ایک مدرسہ ہے بریلویوں کا، وہی تو مرکز نہیں کا، اور وہاں سے شاہ عالم سے فتویٰ آیا ہے کہ جائز ہے. اور بھی دوسرے لوگوں نے دارالحرب اس کو قرار دیا ہندوستان، اور پھر بھی مودی ان کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہیں، حالانکہ وہ خود اس کو دارالحرب ابھی مان رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ دارالمعاہدہ ہے. کبھی دارالامن بن جاتا ہے، کبھی دارالمعاہدہ، کبھی دارالحرب بھی بن جاتا ہے، لیکن حالات جمع نہیں رہتے دارالحرب کے.
कभी कभी गोदरा जल जाता है, लेकिन दूसरों को जलाता है, खुद तो महफूज रहता है। तो ये इस तरीके के हालात हो गए। तो शेयर्स जब जायज हो गए कारोबारी दुनिया में, चौथी शर्त कंपनी की आमदनी में सूद शामिल हो तो नफा की इतनी मिकदार सबका कर दी जाए। ये चीज़ें चलती रहती है, कंपनी में भी चलती है, और इसी तरीके से प्रोविडेंट फंड में भी आप सुन चुके हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए भी एक तो प्रोविडेंट फंड लाजमी होता है कि इतना दिया ही जाए, वो अगर इतना नहीं दिया जाता है उसके कम, यानी हुकूमत की तरफ से ये है कि 5 लाख से ऊपर अगर आपकी सालाना इनकम हुई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब हुकूमत की कुछ स्कीम बदला दी है, लाइफ इंश्योरेंस कर लो, जीवन बीमा, और उसके अंदर कुछ रकम जमा करो ताकि इतनी रकम तक तुम्हें टैक्स कम देना पड़े, यानी तुम्हारी आमदनी ये खर्च में गिनी जाएगी, ये जो तुम करोगे। या ये प्रोविडेंट फंड में मर्जियात, एक तो सरकार लेती है 8%, 12%, 10%, 12.5%, ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग निज़ाम है, इतना वो वसूल करती है। और फिर भी आपकी रकम इतना वसूल करने के बाद भी 5 लाख से ज़्यादा आमदनी है, लाखों की तनख्वाह उनका ये होता ही है, तो फिर उनको कहा जाता है कि आप मर्जियात प्रोविडेंट फंड, यानी आप अपनी तरफ से हर माह 2,000, 3,000 रुपये, 5,000, 10,000 रुपये अपनी तरफ से, हुकूमत के तो ले लिए हैं जो फर्जियात। तो अब मर्जियात पर जो सूद मिलेगा वो जायज़ मिलेगा, फर्जियात पर जो सूद है उसको उलमा ने जायज़ दी है, लेकिन वहाँ भी मसला तो थोड़ा नाजुक ही है। अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा दिया है तो ये ऊपर वाली जो सूद के नाम से ही जो रकम आपको मिलती है उसमें थोड़ा एहतियात बरता जाए। लेकिन चूँकि मुलाजमत का पहला दिन और रिटायर का दिन इतना लंबा चौड़ा बैंकों का हिसाब किताब करना मुश्किल होता है, इसलिए कि जो मिला सूद उसको सूद के साथ माल असल मिला कर फिर आपको उसके ऊपर फिर प्रोविडेंट फंड मिलता है, तो हर साल का गिनना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुफ्ती और फर्जियात की ये तो गुंजाइश रखी, मर्जियात के ऊपर जो सूद मिलता है उसकी गुंजाइश इस तरीके से यहाँ कि कंपनी का कारोबार तो हलाल है उमूमी तौर पर, लेकिन कंपनी का कुछ कारोबार ऐसा होता है जो सूद हो ही जाता है, आता है या देना पड़ता है। आप हलाल कारोबार करते हैं तब भी देना, मदरसों को भी देना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो कुछ आ ही जाता है। तो ये इस बुनियाद के ऊपर जो टैक्सेस थे, तो वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो चीज़ और उसका टैक्स तो देना ही होगा। और एक ये है कि सरकारी टैक्स है, लेकिन ये है कि वो जालिमाना है, जालिमाना कहीं से है, ये मुफ्ती को मुतय्यन कर दिया। जरूर मुफ्ती लालपुरी साहब ने बताया और में एक जगह पर लिख दिया है जालिमाना टैक्स। अब उसकी जालिमाना को हिंदुस्तान में तो मुतय्यन करना आसान है, यूरोप के मुल्कों में तो हुकूमत मसलन रोड टैक्स लिया है तो जितना लिया वहाँ खड्डे नहीं होते हैं, इसका वसूल होता है। मेडिकल का लिया है तो मेडिकल में भी वो आपको सहूलियात देती है। तो जिन जिन चीज़ों पर वो टैक्स लेती है, वो टैक्स जिन चीज़ों की वजह से ली जाती है उनको दिया जाता है, यहाँ नहीं दिया जाता। अब आप उन्हीं की रकम में से उनकी रकम दे सकते हैं, लेकिन फिर वो इतना आम हो गया कि गोधरा में कंकारिया के मुफ्ती साहब है, गोधरा में नहीं है, मौसम के भी नहीं है, कंकारिया के हमारे मोहल्ले के हैं, दोनों एक ही मोहल्ले के हैं, चाहे या बड़े बन गए बम्बई सोसाइटी में चले, अक्सर जो मोहल्ला है उसी मोहल्ले के हैं मुफ्ती इब्राहिम साहब आशर। तो उन्होंने एक मरतबा मुझे सुनाया कि अब तो ये पूछते हैं अपने मकान, एक तो उन्होंने दूसरा जुमला का अपनी बीवी से सीधा ये पूछ लिया, और एक दूसरा ये हमारे पास भी ऐसे स्थिति आए कि आया अपना टॉयलेट बनाने के लिए सूद की रकम इस्तेमाल करना जायज़ है, तो ऐसा होता है जिसकी नाजायज़ थी, आपने मजबूरी के दर्जे में इसकी गुंजाइश दी, तो गुंजाइश से आगे बढ़कर उंगली देकर पहुँचो तो भी गुजारियों की आवाज़ है। तो इस तरीके से हम लोग यही पूछते हैं कि जब सूद की रकम से तेरा संदाज बन सकता है तो मेरा भी बन सकता है, मेरे अपने सूद से मेरा भी बन सकता है, इसलिए सूद की रकम तो तुमको दी है हमने, हालांकि वो ये नहीं समझते कि ये मजबूरी का जरिया, इसलिए मुफ्ती को फतवा देते हुए सूद का जो असल हुक्म है किताब और सुन्नत का वो बतलाना चाहिए। फिर आगे जाकर के उलमाए इस्लाम ने गुंजाइश दी ये कहकर बाद में करना चाहिए ताकि इस्लाम की सही नुमाइंदगी हो, उसके दिल में कबाहत तो आए मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, इतना तो कम से कम मालूम है।